Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. I hope you all are doing well and all the exams are already over. Seed, USEED, NIFT, NID. I hope you all performed fantastic. And for USEED, if I'll talk about in particular, there is only one round and the result will be announced probably in the month of March. By 9th of March it will be announced, and for NIFT and NID there will be a second round. So I hope you have already started your preparation for the second round. And the students who are currently in 12th and their boards are on their head, so best of luck for your boards exam as well. So I am actually last year also I have uploaded a video about USEED cutoff 2024. This year also I saw so many confusions, people searching for USEED cutoff 2025 frantically everywhere on Google, and most of you are not able to calculate what exactly is the cutoff and what is the difference between qualifying cutoff and admission cutoff. So here I'm in this video gonna explain about this particular thing in detail. So these are the certain things which we'll be talking about. Cutoff explained for general, OBC, SC, ST, EWS, qualifying and admission cutoff, other colleges if not IIT through USEED score. Alright, so we're going to talk about that in detail. So first of all, calculation of cutoff. आप लोगों में से बहुत लोगों ने cutoff करा होगा already calculate. इसका एक formula है. I'm not sure कितने लोगों को वो formula पता है, क्योंकि इस year website पे वो uploaded नहीं है. Last year वो website पे वो formula दिया हुआ था. That is mean deviation plus standard deviation divided by 2. अब USEED ने ऑलरेडी मीन डेविएशन और स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर जो है वो रिलीज कर दिया अपनी वेबसाइट पे लास्ट लाइक आई गेस 4-5 डेज बैक. तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 जो एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे, दैट इज द क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी. ठीक है. सो हियर आई एम गोना कैलकुलेट द मीन deviation is 61.50, the standard deviation is 25.69. So 61.50 plus 25.69 divided by 2. So that comes around 74.35. ये आपका जो है that is a qualifying cutoff for general. अब OBC, NCL and EWS के लिए क्या होगा? So that clearly says 90%. So that means 0.9 multiplied by 74.35. ठीक है. तो that comes around 66.9. ये जो कट ऑफ है आपका that is for OBC NCL in EWS. This is the qualifying cutoff. अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो आपका पार्ट बी चेक होगा. यू आर एलिजिबल टू गेट योर पार्ट बी इवेल्युएटेड. ठीक है. नेक्स्ट वन SC ST PWD. इन दीज थ्री कैटेगरीज it's 50%, that is multiplied by 0.5 and then this, so that comes around 37.18. so ये जो है आपका in particular आपका qualifying cut off है for general, OBC, EWS, SC ST and PWD. I hope you got this. ये आपका general cut off आ गया. Moving forward, next one, number of seats. आप लोगों में से शायद अभी तक मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होगा कि IIT इंदौर इज इंक्लूडेड इन फॉर BDS प्रोग्राम फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो अभी तक हमारे पास कितनी सीट्स थी इन टोटल? 225 सीट्स डिवाइडेड इन 6 कैंपसेस. कौन से 6 कैंपस हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर. ये चारों हैं. अब यहां पे अगर आप जनरल कैटेगरी देखोगे देयर आर ओनली 87 सीट्स. ठीक है. अब IIT इंदौर इंक्लूड होने के बाद नाउ इट्स 93 सीट्स. जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट बढ़ गई हैं. अब नाउ इट्स 93 सीट्स. अगर EWS की बात करें सो अर्लियर देयर वर 22 सीट्स divided in these 6 campuses. Now as IIT Indore is included as a 7th campus, so 2 more seats got increased. So now for EWS the total number of seats 24. ठीक है. Similarly अगर OBC की बात करें there are 57 seats earlier, 57 seats for OBC. अब as IIT Indore is included तो यहाँ पे 4 सीट और बढ़ गई हैं. So it becomes now
61, टोटल 61 सीट्स हो गई अब ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में पहले 32 सीट्स थी, यस 32 सीट्स थी, अब 2 सीट और बढ़ के टोटल जो है वो 34 सीट्स। एसटी में 16 सीट थी, एक बढ़ के टोटल 17 सीट्स। सो आई गेस इट्स क्लियर नाउ। तो टोटल जो इस टाइम पे सीट्स हैं आईआईटी में अंडर यूसीड दैट्स 241, सो इट्स मार्जिनली इंक्रीज्ड 225 से 241 पे। अब मूविंग फॉरवर्ड ये चीज आपको क्लियर हो गई, सीट्स हैं 241, जनरल में 93 है, एंड सिमिलरली ओबीसी एनसीएल में 61 सीट्स हैं, एससी में आपका 34 सीट्स हैं एंड एसटी में 17 सीट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आइडियल एडमिशन कट ऑफ। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक बार कि आइडियल एडमिशन कट ऑफ क्या होना चाहिए। सो माय लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, मेरे कुछ बच्चे आईआईटी दिल्ली में गए और उनको ऑफर आईआईटी रुड़की से भी आया। मास्टर्स की जो स्टूडेंट थी हमारी आईआईटी रुड़की से, आईआईटी कानपुर से और आईआईटी दिल्ली से, फाइनली उनको आईआईटी गुवाहाटी से भी आया था, तो फाइनली उन्होंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया जा करके नाउ। और जो हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट थी शी ऑल्सो गॉट आईआईटी दिल्ली। तो अब मैं बात करूं रैंक 1 की, रैंक 1 हमारे यहाँ से नहीं था, मैं एक स्कोर की बात कर रहा हूं जो मुझे अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी लास्ट ईयर। जो टॉप रैंक 1 आया था उसमें नियर अबाउट रैंक 1 का जो स्कोर था, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, इन जनरल पार्ट ए में अगर मैं बात करूं तो 126 के अराउंड रैंक 1 स्टूडेंट जो था उसका स्कोर था, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और पार्ट बी में 59 के अराउंड उसका स्कोर था फॉर रैंक 1। अब यहां से लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, क्वालिफाइंग कट ऑफ, लास्ट ईयर का क्वालिफाइंग कट ऑफ, इफ आई डू रिमेंबर दैट वाज समवेयर अबाउट 58 ऐसा कुछ था। तो अब जो इस साल का कट ऑफ है दैट इज 75, तो ये आपका नियरली 17 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, आई मीन इट्स जस्ट अ गेस, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो इसमें भी आप 17 मार्क्स ऐड करोगे, ठीक है, मैं आपके पार्ट ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ऐड करोगे 17 मार्क्स, तो इट बिकम्स नियरली 143 मार्क्स। और यहां पे ये तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये जो रैंक 1 था उसका स्कोर था, बट एक गुड स्कोर माना जाता है यूसीड के पार्ट बी में बिटवीन 53 टू 62, ये एक बहुत बढ़िया स्कोर है पार्ट बी में, ठीक है। इससे ऊपर जनरली बहुत कम ही आया है और आता है, तो ये एक आइडियल स्कोर कंसीडर किया जाता है। Now 143 and even if I consider 60, so that becomes 200 above for rank 1. अब आपको पता है रैंक 1 और जनरल कैटेगरी में रैंक 93, अगर 93 सीट्स हैं तो एक रैंक से दूसरे रैंक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रेयरली ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे हमेशा से, तो मैंने उस फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करा यहाँ पे अभी तक और जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है यहाँ पे कि पार्ट ए में अगर क्वालिफाइंग स्कोर लाना है तो मिनिमम जो आपको स्कोर करना पड़ेगा दैट शुड बी 100 एंड बिटवीन 110 टू 115, ये आपको करना पड़ेगा, तो ही आपके चांसेस बन सकते हैं। इससे ऊपर भी थोड़ा जा सकता है, हो सकता है 120 के अराउंड हो, 122 के अराउंड हो। अब ये पार्ट बी के साथ कंबाइंड होकर ही एक फाइनल आउटकम आएगा, ये मैं एक गेस कर रहा हूं। अगर किसी का 115 है यहाँ बट यहाँ पे 65 आ गया तो वो बैलेंस कर पा रहा है या कर पा रही है, राइट। बट यहाँ पे अगर 125 भी आ गया बट यहाँ पे 40 आ रहा है तो वो बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट। सो ओवरऑल पार्ट ए और पार्ट बी कंबाइंड ही देखा जाएगा। सो
अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आई गेस नियरली 11 स्टूडेंट्स हैं यूसी दिया, तो उसमें एक छोड़ करके पूरे के पूरे 10 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो क्रॉस कर चुके हैं, और कई बच्चे जो हैं उसमें एडमिशन कट ऑफ की तरफ इस रेंज या इससे ऊपर ही हैं हमारे। तो लेट्स सी पार्ट बी में कैसा स्कोर होता है उनका अकॉर्डिंगली, अभी इसलिए मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ। तो इस चीज को मैंने डन किया, ये एक डिसेंट स्कोर होगा, और पार्ट बी में अगर बात की जाए तो बिटवीन 55 टू 63 एक डिसेंट स्कोर हो सकता है। क्लियर है? गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, इफ नॉट आईआईटी देन व्हाट। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को, बच्चों को आता है। मैं बहुत सारे ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, एंड अभी मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज रखी थी हमने, और ऑल इंडिया मास्टर क्लास भी रखी थी। कई सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और जिन्होंने मास्टर क्लास भी ली, जिन्होंने हमारा मॉक टेस्ट लिया, दे वर वेरी हैप्पी विद इट। तो जो क्वेश्चन हमेशा पेरेंट्स से भी आते हैं, कई सारे हमारे स्टूडेंट के खुद के पेरेंट्स हैं, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इफ नॉट आईआईटी, नहीं मिला किसी भी रीजन से, रैंक नहीं आया तो क्या। अब उनके क्वेश्चंस आते हैं कुछ कॉलेजेस पे, जैसे कि DTU, NSUT, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एंड देन बिट्स। ठीक है, DTU, NSUT, दे आर गुड। आप जाओ, धीरे धीरे शायद आई मीन दे विल इम्प्रूव देयर करिकुलम, दे विल इम्प्रूव द नंबर ऑफ फैकल्टीज, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, बट एज ऑफ नाउ बिफोर जंपिंग हियर फाइंड द रिव्यूज। अगर आपके पास रिव्यू नहीं है, गो फॉर इट। आई have 2 students from DTU last year and NSUT का भी है, तो अगर आप डिमांड करते हो तो मैं लाइव एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है उनके साथ कॉलेज में, या क्या सीख रहे वो, क्या नहीं सीख रहे वो, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगे, राइट। सो when it's coming to for finalizing a decision, always check the reviews, और स्टूडेंट से मिलने की कोशिश करो जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैंपस विजिट करने की कोशिश करो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, इफ़ दे अलाउ यू, एंड ज़्यादा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कॉलेज की रैंकिंग दिखाते हैं उस पर बिलीव मत करना ज़्यादा, ठीक है। उनके जो रैंकिंग देने के पैरामीटर्स है, अगर वो आप देखोगे यू विल बी शॉक्ड। नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पे रैंकिंग दे देते हैं वो, आप समझ रहे हो, कितनी देर क्लास चल रही है उस पर रैंकिंग दे देते हैं वो, उस पर 10 पॉइंट्स दी जाती हैं, तो उस बेस पे तो बिल्कुल आप किसी कॉलेज को रैंक नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितनी कंपनीज आई उस पर रैंकिंग होती है, प्लेसमेंट पे नहीं, कितनी कंपनीज आई सिर्फ उस पर रैंकिंग हो जाती है, 10 पॉइंट्स उस पर मिल जाता है। किसी का 10 कंपनीज आई तो 5 पॉइंट मिला, किसी का 30 कंपनीज आई उसको 10 पॉइंट्स मिल गया। प्लेसमेंट एक भी हुई या नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेग्रीगेट करते हैं, रैंकिंग देते हैं इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ को, डो नॉट बिलीव ब्लाइंडली, या फिर फैक्टर्स पढ़ो कि किस फैक्टर के बेस पर उन्होंने रैंकिंग दी है। यू विल गेट टू नो कि वो फैक्टर्स बहुत ही अजीब से टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, और अनएथिकल है, वो मतलब नहीं बनता। तो दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पता चल गया क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, एडमिशन कट ऑफ क्या हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करना सा। सो यप, आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। It is about scam and design field going across India, be it college, university, coaching institutes, जो भी है, इसके बारे में we'll be discussing about it in detail। और 30-45 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें मैं एक्सपोज करूंगा कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। Alright, so see you in the next video then. Till then, take care, bye bye।